I wanted to speak to you about Jesus rather. Because Jesus, like any avatar, when he comes in a particular age of time, he brings a knowledge which is too ahead of that particular time. This happens with every avatar. It happened with Rama also, it happened with Krishna, it happened with Jesus, it happened with Muhammad, everybody. And it happens naturally. I think that is part of the entire game of creation. And that is the reason immediately, like Meher Baba used to say, for 100 years at least, from the day Avatar leaves his body, nobody recognizes or remembers Avatar. But after 100 years, it is built in the law of nature that after around 100 years, people will start talking about a particular Avatar of that age who was lost, who was not remembered. So Jesus was also one among them. You know the history of Jesus, and if you do not know, just go and watch. You know the web series called The Passion, wonderfully made web series on Jesus, and there are some others also. And I always keep telling people, if you watch OTT content, it really helps you in growing your in spirituality, not growing your, rather growing in spirituality. Because the way they picturize, especially the foreign directors and script writer, the way they picturize, the way they capture the emotions, it's very fine, very, very fine. And generally, you might have seen in your life also when you meet different kind of people. Some people are very gross in their mind and also in their emotions, and then some are very fine, some are finest, and you tend to appreciate those who have fine or finer, emotions or intellectual ability. So it was something like that because when Avatar came, there was a lot of resistance already existing in the society. So nobody would appreciate except or barring a few people who, again by design of the nature, come with Avatar as the closest disciple and participate in the work of Avatar. They participate in the work of Avatar. Otherwise, largely Avatar is not known in that age. So the same thing happened with Jesus and same thing happened with Meher Baba also. Today you will find that many people are talking about Meher Baba. If you go to Ahmednagar, you will find large number of bhajan kirtans and other things are happening. I am also talking about Meher Baba, maybe because of his blessing. What Meher Baba said कि पूजा अर्चना मेरी करने से कोई होगा नहीं फायदा. But the best thing is whatever knowledge I have given, try to apply it, try to implement in your life, and also just remember me with faith and with trust. अगर ये यूजुअल पूजा अर्चना में चला गया तो आप भजन कीर्तन गा लोगे, ढोलक पीट लोगे, बट आप उनको याद भी नहीं करोगे, उनके फिलॉसफी को नहीं याद करोगे. और पूजा का रियल मतलब होता है कि जो कह गए हैं, चाहे अगर आप भगवान की बात करें या अवतार की, उन्होंने जो बात आपको बताई है और अगर आप समझ पाते हैं तो उसको जीवन में उतारिए, तभी आप पूजा करने के योग्य हैं. क्योंकि अगर आप गंदे हैं और आप किसी बहुत ही स्वच्छ आदमी के पास जाना चाहते हैं या उनसे मिलना या बात करना चाहते हैं, तो आपकी बात नहीं सुनी जाएगी ना, क्योंकि आपकी गंदगी से गंदगी ही निकलेगी. तो अपने भीतर की स्वच्छता लाइए. और भीतर जब मैं कहूँ तो शरीर नहीं, मन की स्वच्छता इंपॉर्टेंट होती है. तो लाइकवाइज जेंटलमैन, जीसस एक अलग ही पर्सनालिटी थे. ही केम एज अ सन ऑफ गॉड, which eventually is God Himself, taking birth as Son of Himself, you can say. When I say Son of Himself, it is Son of Infinite Himself. And He came here to bear the sufferings which was due for the society of that particular time because of their own wrong thinking and wrong emotions. उनको पता था, ईश्वर को पता होता है, जो हम कृष्ण जी ने बोला कि जब भी धर्म का नाश होगा, धर्म का नाश के समय क्या होता है कि जो नाश कर रहे होते उनको तो पता नहीं होता और बहुत लोग उसमें फंस जाते हैं. उनके अंदर से आवाज़ आती है कि भगवान कोई बचाओ. तो ऐसे समय में अवतार आते ही आते हैं और अवतार का आना भी निश्चित होता है. आपको बता दूं, इसका ये नहीं मतलब है कि हम सब मिल के करोड़ों लोग अगर चिल्ला रहे हो तो अवतार आ रहे हैं. अवतार को आने का समय होता है, इसलिए हमारी ये वेदना शुरू हो जाती है, वॉर शुरू हो जाते हैं. ये सारा एक गेम है जिसको आप समझने की कोशिश करिएगा. तो जीसस एक ऐसे ही व्यक्ति थे. वो लव की बात करते थे. वो जिस स्तर से आए थे वहाँ लव की ही बात होती है और लव में हमेशा हैप्पीनेस भी होता है. तो उस लव के थ्रू
वो आए, उन्होंने यहाँ पर काम किया, पूरे उस समय के जो भी सफरिंग थी उसको अपने ऊपर उठाया। जो क्रॉस हमने जो उनको दिखाया जाता है कि वो क्रॉस लेकर के खुद चले एंड ऑल दोस्त, वो ये बताते हैं कि सारी सफरिंग अदरवाइज उस समय के समाज में जो कमज़ोर व्यक्ति थे उनकी ये सफरिंग होती, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। और बड़ी अच्छी सी बुक है, अगर आप उसको पढ़ें। मैं कई लोगों को ये देता हूँ, बट वही पढ़ पाएंगे जो रियली उसको समझने के योग्य होंगे। लॉ ऑफ लव, इट वॉज रिटन बाई ए स्पेनिश गाय, उनका नाम मुझे नहीं याद आता है, और उन्होंने इसका कोई पेटेंट वगैरह, कोई कॉपीराइट वगैरह नहीं लिया हुआ है। कहते हैं आप पढ़िए। तो उनके साथ ऐसी घटना घटती थी कि रात में आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होते थे। ही यूज टू लीव हिज बॉडी। हम सब भी लीव करते हैं जब सपने देखते हैं, बट सपने हमारे बड़े वेवर टाइप के होते हैं। बट वो सपने में नहीं जाते थे, वो दूसरी दुनिया में या दूसरे लोक में या स्वर्ग लोक जिसे आप समझते हैं उस डायरेक्शन में जाते थे। वहाँ किसी बहुत ही हायर आर्च एंजल से उनकी मुलाकात होती थी, और उनसे एक बार चर्चा में उन्होंने बोला कि तुम क्या जानना चाहते हो। तो नेचुरली है, बहुत सारे ईसाई स्पेशली जेनजी में जानना चाहते हैं कि जीसस का रियलिटी क्या था, उनके जो कमांडमेंट्स थे उसकी रियलिटी क्या है। और उसको उस व्यक्ति ने, उस आर्च एंजल ने इतने बढ़िया खूबसूरती से समझाया कि आपके होश पॉजिटिवली उड़ जाएंगे कि मैं क्या सोचता था और क्या ये है। तो सम ऑफ यू who like to really go and understand the Christianity, you should go. As I told you, avatar is for every religion. Like for me also, if I call myself a spirituality, I am for every religion. But I do not follow any religion as such, because I follow the spiritual philosophies, the spirituality itself, the living of a spiritual life itself. रिलीजन आपकी साधना के लिए कुछ हद तक ठीक हो सकता है, टू प्यूरिफाई योर माइंड, पर जब आप सीरियसली आपको जाना होगा तो आपको इन व्यक्तियों के जीवन से समझना होगा। फॉर दैट मैटर किसी भी व्यक्ति जो भी सेल्फ रियलाइज्ड हैं, जिन्होंने भी आत्मा की खोज कर ली है, उनके जीवन के थ्रू आपको गुजरना पड़ेगा कि वो अपनी कमियों से कैसे ऊपर उठे, उन्होंने क्या क्या किया, उनका क्या कहना था। तभी आप समझ पाओगे कि आत्मा तो आत्मा ही है, बॉडी बॉडी है, जो बीच में माइंड आता है इसी का सारा खेल है। और ये माइंड को ही हम डुअलिटी भी कहते हैं, क्योंकि हमेशा ये विपरीत दशाओं में रहता है। और जब आप लव में चले जाते हो तो आप सिंगल हो जाते हो। तो लेकिन माइंड आपको कभी भी लव में जाने नहीं देगा, क्योंकि वो पकड़ के आपको रखना चाहता है। इसीलिए सारी चीज़ें हैं, जेलसी है, एंगर है, हेट्रेड है, फेयर है, ये सारे डुअलिटी कहते हैं, क्योंकि आपको ये नहीं बताने देते कि हम सब बाय नेचर हैप्पीनेस है, लव है, वी आर ऑल वन। ये माइंड आपको करने नहीं देगा। तो जीसस आए और उसके बाद फिर धीमे धीमे दुनिया वैसी हो गई। फिर मेहर बाबा आए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय आए, फिर दुनिया देखी बदलने लगी। तो दुनिया कभी परफेक्ट नहीं होगी, ये आप भूल जाइए, ये दुनिया के डिज़ाइन में ही नहीं है। इसलिए आप में से बहुत ज़्यादा लोग जो बहुत ही उत्तेजित रहते हैं कि मुझे ये करना है, वो करना है, करिए, अगर आप उससे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन अगर आपको जब समझ में आता है कि दुनिया का ठेका या कंट्रोल इज ऑलरेडी विद गॉड, इट इज़ बीइंग डन, और वॉट एवर ही इज़ डूइंग, ही नोज वॉट एवर ही इज़ डूइंग। इसलिए इवन जो सेल्फ रियलाइज्ड होते हैं, जो आत्मा बन चुके होते हैं, वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि क्या क्या गड़बड़ है या चेंज कर सकता हूँ, बट मुझे आवश्यकता नहीं लगती, क्योंकि ईश्वर ने ये सारा खेल के लिए बनाया है, क्रिएशन। मैं कहता हूँ जॉय के लिए बनाया है, सेलिब्रेशन के लिए बनाया है। तो फिर उनको लगता नहीं कि ज़रूरत है। मान लीजिए कोई बहुत दुखी व्यक्ति आ गया, वो चाहे तो चेंज करके उसको सुखी कर दे, लेकिन उससे फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर उसको थोड़ी सी चोट लगनी है तो लग जाने से उसका ये कर्म कट जाता है। कर्म एक तरह का बोझ है जो आपको ऐसे करके कॉन्फिडेंस से चलने नहीं दे रहा है, तो वो बोझ को काट देता है। और अगर मैंने पहले ही बोझ को काट दिया या सिम्टम बदल दिया, तो वो बोझ तो आपके ऊपर है, तो आप हमेशा झुके रहोगे। तो इसलिए जो रियली जो बहुत ही समझदार सेल्फ रियलाइज्ड होते हैं, वो इन चीज़ों में हाथ नहीं लगाते, क्योंकि उन्हें पता है कि ईश्वर ने जो सोचा है सही सोचा है, और उसमें सबका भला है। ये आपको सुन के हैरानी होगी, बट धीमे धीमे समझ में आ जाएगा। हमको समझ में आया, औरों को समझ में आया, आपको भी समझ में आएगा। मैं एक रिक्वेस्ट और करूँगा आपसे, ये चैनल बड़े ही प्योरिटी से मैंने क्रिएट किया, और मैं ये मानना चाहूँगा कि ये मेहर बाबा ने खुद मेरे थ्रू क्रिएट करवाया, ताकि मैं उनकी बात करूँ और उनको हमेशा याद रखूँ। आप में से भी जिनको भी ये पसंद है, ये इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें,
और प्रश्न पूछे। जो सत्संग आप जानते हैं ना, ये प्रश्न और उत्तर का ही एक कार्यक्रम होता है, लेकिन दुखद ये है कि आजकल वो एक सो कॉल्ड गुरु और सभाओं का केंद्र हो गया है। उसमें हम रियली जेन्युइन क्वेश्चन नहीं पूछते। हम आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, खुद के बारे में, जानने के बारे में नहीं पूछते। उसमें गुरु अपनी बातें कर रहा होगा, कई बार ज़्यादातर वो अहंकार में करता है, और बाकी लोग सभा में बैठ के अपने अपने फ़ायदे का सोच रहे होते हैं। आजकल तो बहुत सारे गुरु नेटवर्क बिगिन करना शुरू कर दिए हैं। वो उनका राह है, उनको करने दीजिए। मैं आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा, आप में से जो भी मेहर बाबा को पसंद करते हैं या मेहर बाबा जैसे दिए गए ज्ञान को पसंद करते हैं, सब्सक्राइब जरूर करिए और प्रश्न जरूर पूछिए। धन्यवाद।